Hello everyone, good morning. So before we start today's class, let me just complete your yesterday's homework. This was the homework yesterday which I gave you. Many of you couldn't solve it, so I'm solving it right in front of you. So what we have to follow is same process. We have to go for xi, fi, and then fi xi as regular. The xi is 10, 30, then we have 50, 70, and 90, whereas fi is 17, f1, 32, f2 of course, and 19. 17 into 10, 170, then f1 into 30, so it will be 30 into f1. It's like 30x, right? 32 into 50, so the 0 comes as it is, and 5 2s are 10, 1 carry, 5 3s are 15 plus 1 16, right? 70 into f2, 19 into 9, so 0 comes as like that, so 9 9s are 81, 1 8 carry, 9 1s are 9 plus 8, 9 plus 8 is 17, so here is the number. So we can add these except these two numbers. ठीक है, तो 0 comes as it is, 7 plus 1 8, 7 7 7 14 4 1 carry, and we have 3480. Purposely I'm solving it as it is, how it is basically required to be solved, so that you understand that things are not that difficult, right? 9 9s are 81, 9 9s are 9 2s are 18, 18 8 1 carry, 1 2 3 4 5 and 6 68. Of course we are forgetting that plus 30 f1 plus 70 f2 we have, and here 68 plus f1 plus f2 we have. So these are the things that what we got it. But why don't you understand that in the given question there, it is given the total of frequency is equals to 120, whereas I'm getting 68 plus f1 plus f2. So it's very clear, 68 plus f1 plus f2 is going to be equal to 120. So we get f1 plus f2 is equals to 128 minus, sorry, 128 minus 68. So 120 minus 68 कितना होता है? So it is 2, 1 carry, 60, 12 minus 7, 5, 52. So we have that equals to 52, and that will be equation number 1. As I have said yesterday, we get a linear equation. And the second linear equation I might get using the mean value. Mean is 50. So I will set the mean value. Let me change the color of the pen. So we have x bar is equals to summation fi xi upon summation fi. So we have 50 is equals to summation fi xi is 3480 plus 30 f1 plus 70 f2, right, divided by 120, which is summation fi. So I'm not purposely writing that, I'm going to write the value of it. Shifting this 120 that side, I get 6000 minus 3480 is equals to 30 f1 plus 70 f2. So this subtraction is very simple. 0 minus 0 is 0, 8 2 1 carry, 5 1 carry, 4 5 2 0 is equals to 30 f1 plus 70 f2. Now this would be my equation number 2. Now if I solve these equations simultaneously, I mean to say I multiply the equation number 1 by 30 and subtract it, I'm going to get my answer. So this is the simple idea that what linear equation we are going to use in this particular question. So that's it. I'm not going to solve hereafter. I know after this you can easily solve as like a linear equation. Only thing is that instead of x and y, we have f1 and f2. So that's it. I just hope that things are clear to you all, and I'll just close this now and we go for the next part. Now we did not solve two more questions of the same category. Why we did not solve, I'll just explain you. So I'm not actually going to solve any of this question, I'm just going to help you in getting the correct answers of these questions. So first of all, the C questions that what we did not solve even after having the same method of working,
We did not solve this C question. The reason why we did not solve it, the reason here is, you can easily check. Okay, the group is not continuous. Okay, I hope you understand that. Okay, group is not continuous. You can check that here. It is 52 and it is 53 here. It is 55 and next is 56. So we need to first of all make it continuous. Last year we have done this. I hope you remember that. We had done this last year. How to make it same. How to make the things same, right? We have done that. तो वो कैसे करेंगे? That we'll check. So first of all, what we have to do is, I have to write the wages, that how it is mentioned there. As the classes, so we have 50 to 52. So we have to reduce 0.5 from the 50. So it will be 49.5 to 52.5. And same way, 52.5, reduce 0.5, add 0.5 to 55.5, and so on if you do. ठीक है, 58.5 to 61.5 and 61.5 to 62.5. So please keep in mind, if you are not doing these, then your answer is going to be wrong. It's going to be incorrect. ठीक है. Then we need FI, that is workers. It is 15, 110, 135, 115 and 25. I know the numbers are quite big, but we have to manage. There is no option. ठीक है. Now exercise this upper limit plus lower limit upon 2. So 49.5 plus 52.5 and 0. Then we have 1. So it is 12, 1 carry, and 10. 102 divided by 2. So 51. That is 51. ठीक है. This will be 53. 54 I think. This would be 54. ठीक है. This would be 57. Here it would be maybe 60, and this would be 61 I think. 64.5 it should be. तो it would be 63. तो ऐसे मुझे डायरेक्टली कैसे आ गया समझ में? 3 ऐड कर दो इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो. 3 कैसे ऐड कर, मतलब हाउ डिड आई अंडरस्टैंड दैट? इट आफ्टर एडिंग 3 आई गेट इट. द हाइट इज 3. I mean to say 52.5 minus 49 is 3. So if you add height to this particular term of xi, you get the next terms. Okay, this is a simple trick. You don't have to unnecessarily calculate everything, but this you understand, or this you will realize after solving some questions. Okay, so in case if you are confused, you have to follow the regular process. Remember that. तो चलो, तो हमें करना क्या है? As I know that I have to go for summation fi. Summation fi xi. So we have to go for fi into xi. So you have to multiply these two. You have to, there is no option. ठीक है, and add that. तो ये होगा addition, summation fi xi. And you know the formula, x bar is equals to summation fi xi upon summation fi. Okay, so this you can easily find it, and you have to get the correct answer, that is 57.19. If you're not getting even that 9, then your answer is going to be wrong. So keep this in mind, that calculation is the basic key, the main part of this particular topic. If you are hesitating with the calculation, if you are not going to do it, then 100% sure that you are going to lose all the marks of statistics. ठीक है, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, खुद से सॉल्व करो. कैलकुलेशन जो भी जितने भी है खुद से करो. ओके, यू विल रियलाइज दैट यू कैन ऑल्सो प्रॉपरली डू इट. इसलिए तो आंसर्स दिए हुए हैं. ठीक है, आंसर एग्जैक्टली आपको लाना है. ठीक है ना, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ. आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, डी वाला क्वेश्चन. आई नो दैट देर आर डेसिमल्स एंड ऑल, बट यू हैव टू मैनेज विथ दोज डेसिमल्स. ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको, इफ़ यू वांट. तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा. वो जो क्लास है, जो एफ आई है एंड एक्स आई है. तो क्लास है 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08. एफ आई तो है 4 9 है.
एक्स आई क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो ये होगा 0.02, तो 0.04 प्लस 0.08 इट वुड बी 0.12, तो 0.12 डिवाइड बाई 2 तो 0.06, इट वुड बी 0.06. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज 0.03, 0.04 ऐड कर दिया तो यू गेट योर नेक्स्ट वन, तो इट विल बी 0.10, नेक्स्ट विल 0.14, next will be 0.18 and all so on. So it's simple है ना, not difficult. But हाँ, fi xi you have to multiply it, right? fi xi you have to multiply. तो the multiplication properly करना, क्योंकि 4 into 0.2 it will be 0.08. ओके 9 into 6 54, तो 0.54, तो ये ठीक से करना. यहाँ पे कितना है पापा, 9 है, तो ये हो जाएगा 0.90. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये ठीक से करना, एंड देन ऑफकोर्स यू हैव टू ऐड एंड देन गेट द आंसर डन. ठीक है, आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर आता है. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं आज के दिन के लिए. तो यहाँ तक आपको इतना तो समझ में आ गया कि कैलकुलेशन मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं. ओके, सिर्फ मैटर नहीं करते, इनफैक्ट दैट माइट अननेसेसरी लूज योर मार्क्स एज वेल. तो कंसिडरिंग all these things, we have to find out a mean, isn't it? तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, सो दैट वी अननेसेसरी डू नॉट लूज आवर मार्क्स. ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन इज अज्यूम्ड मीन मेथड. द नेक्स्ट मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड. ये कुछ अलग सा मेथड है. ठीक है, अलग मेथड है, अलग सिर्फ मेथड अलग नहीं है, तो इसका जो वे है वो भी समझ में आना चाहिए. तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ये है आपका क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है अज्यूम्ड मीन से. तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड. पहले हम लोग प्रोसेस करते हैं कंटिन्यू. ठीक है, इसको क्या हो गया, हाँ यस, प्रोसेस को करते हैं कंटिन्यू एंड देन हम लोग चेक करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है. जस्ट 1 मिनट यू गिव मी, आई एम नॉट एबल टू सेटअप इट. हाँ यस, इट इज़ नाउ सेटअप. तो ठीक है, देखते हैं. आपको तो मीन फाइंड करना है इस चीज़ का, तो यहाँ पे तो क्लास बनेगा, तो जो आपको पता है ऑलरेडी, ये रहा क्लास, यहाँ पे एफ आई एंड यहाँ पे एक्स आई. जो अभी तक करते थे वही करना है, नो चेंज. तो क्लास है 0 to 10, पर्पजली एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. ठीक है, देन वी हैव एफ आई 7, 10, 15. ठीक है, 8 एंड 10. एक्स आई क्या है आपको पता है, 5, 15 है ना, 25, 35 एंड 45. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. अभी हम लोग करते थे एफ आई एक्स आई, लेकिन यहाँ पे अभी हमें करना क्या है, हमें अज्यूम्ड मीन करना है. मतलब मीन को अज्यूम करो. ठीक है, अज्यूम्ड मीन का मतलब है मीन को अज्यूम करो. तो फ्रॉम एक्स आई एनी वन नंबर, लेट मी टेल यू, एनी वन नंबर यू कैन कंसिडर एज अ मीन. ओके, कंसिडर करना है बस, मतलब अज्यूम करना है. तो इमेजिन करो कि मैंने 25 जो एग्जैक्टली एट द सेंटर है उसको मैंने अज्यूम किया ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन. अभी हमें करना क्या है, डी आई फाइंड करना है. यू नो व्हाट इज डी आई? डी आई इज एक्स आई माइनस ए. ये फॉर्मूला याद रखो, डी आई डेविएशन बोलते हैं, डिफरेंस आप लोग समझ लो, इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए. जो हमने अज्यूम किया हुआ है मीन को, उसको ये एक्स आई में से सब्ट्रैक्ट करो. मतलब 5 माइनस 25, वेरी क्लियर, ये आ जाएगा -20. 15 माइनस 25 -10. 25 माइनस 25 बिकॉज इट्स द सेम अज्यूम मीन, तो ये 0. उसके बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा 20. ठीक है, मतलब हमने ये क्या फाइंड किया, हमने डी आई फाइंड किया. ठीक है, अभी हम लोग करेंगे इसका एफ आई डी आई. हम लोग क्या करेंगे, एफ आई डी आई. देखो अभी इससे पहले हमने क्या किया था, एफ आई एक्स आई किया था. अभी हमारे पास क्या है, डी आई भी है. ओके, हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प अस, लेट्स अंडरस्टैंड. दिस कैलकुलेशन बिकम ईजी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. देखो पहले हम लोग 5 से 7 को मल्टीप्लाई करते थे, अभी तो ईजी हो जाएगा क्योंकि 20 है. ठीक है, तो इट इज -140, दिस वुड बी -100, राइट. ये तो 0 हो जाएगा. एफ आई याद रखो, एक्स आई से नहीं, एफ आई डी आई करना है.
ठीक है, A80 हो जाएगा। देखो ओरली आई एम एबल टू कैलकुलेट इट, ये हो जाएगा 200। जो प्लस वाले नंबर से, क्योंकि हमें समेशन करना है अभी इसका, मतलब FIDI का एडिशन, तो जो प्लस वाले नंबर से उनको ऐड कर दो, तो 280 माइनस ये हो जाएगा 240, आंसर आएगा 40, बराबर है। तो एडिशन इज नथिंग बट 40। FI का एडिशन करना है, जैसे हमने इससे पहले भी किया था FI का एडिशन, तो 7 5 12 8 20 0 2 कैरी 2 3 4 5, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार करेंगे। इससे पहले मैंने एक्स बार क्या किया था, समेशन FI अपॉन समेशन FI, लेकिन अभी समेशन FI नहीं है, यहाँ पे क्या है, समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। ओके, तो वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे करना क्या है, A प्लस कर देना है, क्योंकि हमने A को सब्ट्रैक्ट किया था सबसे, तो बस उसको फिर से वापस हम लोग उसको दे रहे हैं, दैट्स इट। I'm just hoping that you understood the formula, the change in the formula. ओके, सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, बस उसमें जो हमने सेपरेट किया ए को, वो बस हम वापस दे रहे हैं। तो ये ए जो वापस दे रहे हैं वो कितना है, 25 है, प्लस हमारे पास FIDI कितना है, FIDI है 40, और FI कितना है 50, 0 0 गेट कैंसिल। देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये मैथ्स नहीं है, ये स्टैट्स है, तो इसको बिल्कुल भी मैथ्स जैसे आप लोग सॉल्व मत करो। अभी हम लोग, ये मैथ्स होता तो हम लोग क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बिल्कुल नहीं, ये गलती कभी नहीं करना ज़िंदगी में कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो, सीधा 4 को 5 से डिवाइड करना है, 0 48 का, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0.8 मतलब 25.8, और ये हो गया आपका आंसर। लेकिन ये आंसर नंबर नहीं है, ये एक यूनिट होना चाहिए, तो इन थाउजेंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स इन थाउजेंड, तो 25.8 थाउजेंड इज माई एक्चुअल फाइनल आंसर फॉर मी। आई एम जस्ट होपिंग दैट यू आर क्लियर। देखो हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं, तो इसीलिए आपको करना क्या है, एवरी डे प्रॉपरली विदाउट कीपिंग द वर्क पेंडिंग यू हैव टू कंप्लीट दिस। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। कभी कभी ये DI निगेटिव भी आ सकता है, अगर ये DI निगेटिव आया तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी सब्ट्रैक्ट इससे। ओके, तो ये जो होगी सब्ट्रैक्ट होगी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द वैल्यू can be negative, the summation can be negative. Second question, one can ask me that A, I have taken 25, can I take 15, can I take 35? Yes, any value you can take, but if it is closer to the central value, then it would be bit better. That's why we have taken the exactly center value. ठीक है, closer to central value, any value you can take, you get the same answer. Let me tell you, any value you take, A as you take 35, you take 45, anything you take, फाइनल आंसर आपका 25.8 थाउजेंड ही आएगा। दैट्स इट। हम लोग और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करना, जैसे कि ये वाला। ठीक है, सो दैट ये ज़रा इजी आंसर है इसका। हाँ, ये करते हैं, ये ट्राई करते हैं, सो दैट द क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा बिट कंफ्यूज हो, डिफिकल्ट हो। तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एंड देन उसके बाद आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ओ ओ ओ जस्ट मिनट, गिव मी, okay, so what we have is nothing but, try to understand, salary per day rupees में होगी मे बी, ठीक है ना, salary per day in rupees, and then we have these all classes. So class we have 100 to 150, 150 to 200. It takes time, I know that. 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450, एंड 450 टू 500। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। तो वी हैव FI हियर, फ्रीक्वेंसी हियर एज 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 and 7. देन वी हैव XI एज रेगुलर। इसमें कॉलम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वी हैव XI इज 100, 250, 250 अपॉन 2, 125, 100 प्लस, ये देखो ना, सिंपल सी बात है, 250 अपॉन 2,
125 बराबर ना। अभी इसमें कितना ऐड करेंगे, 50 को ऐड कर देंगे क्योंकि 50 का हाइट है, 100 एंड 150 50 का हाइट, इसमें 50 ऐड करें 175, यू कैन चेक इट। इसमें 50 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 225 बराबर, ये हो जाएगा 275, फिर 325 375। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो 425 एंड 475, द थिंग्स विल बिकम ईजी। आप अभी हमें करना क्या है, कोई भी एक को हम क्या करना है, हमें कंसिडर करना है कि वो क्या हो, ए हो, मतलब क्या, अज्यूम्ड मीन हो। तो अज्यूम्ड मीन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। प्लीज रिमेंबर इट्स नॉट ए माइनस एक्स आई, इट इज एक्स आई माइनस ए। ओके, तो रिमेंबर ऑलवेज के पहले वैल्यू जो होते आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, उसके बाद जीरो आता है, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं। इतना भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ रॉन्ग हो गया है। तो एक्स आई माइनस ए करना है, ए माइनस एक्स आई करोगे तो अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आने के चांसेस है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था कि सेंट्रल वैल्यू लेनी है, लेकिन यहाँ पे सेंटर तो दो नंबर है, तो इन दोनों में से कोई भी एक पकड़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं पकड़ने के लिए 275 करता हूँ, तो इसको मैं एक कर दिया। अभी एक्स आई माइनस है, दिस माइनस है, मतलब क्या, 275 माइनस 125 एंड साइन माइनस दे दो, तो इज इट 150? नहीं, तो ये आ गया 150, लेकिन माइनस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा -100, अभी क्या होगा -50, अभी 0, उसके बाद तो पता है 50 100 150 200, you can easily verify it, and we have or we need FIDI, remember it, आपके कॉलम्स को याद रखना है आपको, ठीक है। FIDI करते हैं, इट विल टेक टाइम, आई नो दैट, कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम जाएगा जाने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आंसर तो करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये रहा 0, ठीक है। 24 इंटू 15 चेक करते हैं, ठीक है। 100 इंटू 40, तो 3 zeros एंड 4 साइन माइनस, 50 इंटू 33, तो माइनस साइन आपको 0 ये रहेगा, ठीक है ना, 0, ये तो 0 हो गया। ओके, 30 इंटू 50, ठीक है, तो 2 zeros एंड 1 5, 22 इंटू 100, सो 22 इंटू 2 zeros, ये एक 0, 2 4, ठीक है, 7 1 4 0 0, ये रहा मेरा पूरा कैलकुलेशन। अभी जो निगेटिव नंबर्स है उनको ऐड करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स है उनको ऐड करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। ये है मेरा टिपिकल आइडिया। तो ये रहा एडिशन, निगेटिव वाले एडिशन करते हैं हम लोग, तो 0 5 12 1 कैरी, 4 and 4 8 8 and 1 9, -9 2 5 0, और पॉजिटिव ऐड करते हैं, तो 0 0 0 0, तो ये 2 zeros तो आ गए, 5 + 2 7 and 8 15, है ना, 15 5 1 कैरी, तो 2 2 4 5 6 एंड 7, तो ये रहा 7, इन दोनों को सेपरेट करना है, तो ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, देन 12 - 5 आ गया 7, राइट, आई थिंक सो, यस, कैरी, और ये 1, साइन आएगा माइनस, देखा माइनस साइन आ गया ना, मैंने बोला था माइनस साइन आ सकता है करके। तो 1750 इज माई -1750 इज माई समेशन, -1750। एफ आई का समेशन करते हैं, इसका समेशन भी करते हैं, तो 4 3 7 7 8 15 15 16 17 17 and 7 17 and 7 is 24, 24 plus 6 is 30, 30 0 3 carry, 3 plus 1 4 4 then 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये रहा 200 अपना वाला सिंपल वाला आंसर। अभी हमें एफ आई एक्स आई का फॉर्मूला लिखना है, वो क्या होता है, देखो, समेशन FIDI अपॉन समेशन FI होना चाहिए प्लस ऑफकोर्स A होना चाहिए, दैट्स इट। तो A क्या था मेरा 275, देखो यहाँ पे 275 प्लस माइनस ऑफ 1750 डिवाइड बाय 200, देख लिया, ऑफकोर्स 0 0 गेट कैंसिल एंड देन वी कैन डिवाइड इट, सी क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मत करना। तो 275 प्लस इस
2 को 0 को वैसे ही रहने दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये एक्चुअली बेसिकली माइनस हो जाएगा, और 2 से डिवाइड किया और फिर 0 से करो। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, 175 डिवाइड बाई 2 20 है ना, तो 2 10 जा एंड 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, ऐसे हो जाएगा ना 0.5, ठीक है। और फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 8.75 हो जाएगा, तो दिस वुड बी 8.75। तो हम क्या करने वाले, इन दोनों को सपरेट करने वाले, तो 275 माइनस 8.75, ऑफकोर्स ये 0 0 है, तो ये 5, ये 1 कैरी, तो 2 1 कैरी, 15 माइनस 9 इज 6, 1 कैरी 6 एंड 2। तो ये देखो कितना क्लियर एंड डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको लग रहा होगा कि मैंने कैलकुलेटर वगैरह यूज़ किया है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया, इसलिए मैंने ये सारे के सारे ओरल कैलकुलेशन आपको करके दिखाए हैं, और आंसर एग्जैक्ट आ गया मेरा 266.25 क्या रुपीज़। ओके, तो दिस वुड बी माई आंसर। देखा कितना इजीली एंड डायरेक्टली आंसर आता है। तो मैं बस यही बोलने की कोशिश आपको कब से कर रहा हूँ कि आपका जो भी एफर्ट है वो कैलकुलेशन में लगाना है आपको एट एनी कॉस्ट, ठीक है। कभी कभी ये जो नंबर है, ये डिवीजन जो है, ये रिकरिंग आता है। जैसे कि अभी इमेजिन करो मेरा रिकरिंग डिवीजन ऐसे आ सकता है, मतलब 24.373 या फिर 52.175 या फिर 33.192। तो इसको अप्रोक्सीमेट करना होता है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24.37, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 52.18। अभी आपको समझ में आ गया कि ये अगर नंबर 5 एंड अबव है, थर्ड नंबर, तो आपका जो पहले वाला नंबर है उसमें एक ऐड कर दो, तो देन यू गेट अप्रोक्सीमेट आंसर इन दिस मैनर, ओके। बट ये भी अप्रोक्सीमेट आंसर भी एग्जैक्टली वही आना चाहिए जो मैंने दिया हुआ है, ओके। मैंने अप्रोक्सीमेट करके आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज का आपका टारगेट क्या है, चलो आपको मैं बताता हूँ आज का आपका टारगेट क्या है। आज का आपका टारगेट है ये जो कंप्लीट करना है आपको, क्या कंप्लीट करना है, ये हमने किया है, ये भी किया है, हाँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे हम लोग वीडियो 2 शुरू करते हैं, जहाँ से हमें यूजिंग अज्यूम्ड मीन, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक बी क्वेश्चन है, उसके बाद सी है जो हमने अभी अभी करके दिखाया, उसके बाद हाँ स्टेप डिविएशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये आपके सिलेबस से कैंसिल हो चुका है, तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ अकॉर्डिंग टू द वीडियो, ठीक है। ये रहा आपका वीडियो 1 जो आपने कंप्लीट कर दिया। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए होंगे, तो वो भी आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ से डे 2 शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आई हैव आस्क्ड यू टू सॉल्व बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन स्टेप डेविएशन तो आपको सिलेबस को नहीं है, तो यू कैन यूज द सेम अज्यूम्ड मीन मेथड फॉर सी क्वेश्चन, क्योंकि ए एंड बी तो सेम ही है जो ऊपर दिए हुए हैं। तो आपको बस सी क्वेश्चन के लिए ये जो दिख रहा है, इसके लिए अज्यूम्ड मीन से ही आप लोग सॉल्व करो, चेक करो आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है, 47.2, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद डे 3 ए है, तो ये वीडियो हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।